Please mute yourself. Bismillahirrahmanirrahim. This is day 13 of our CAPS calculation, and today we will see chapter 13. It's molecular manipulation. What do we mean by molecular manipulation? We will be using a lot of things we learned in moles chapter when we were learning the moles thing, and we will see the weight to molecular weight, the comparison between weight and molecular weight also. So we can say that this chapter is closely related to the moles one, the chapter that contains moles. This is the way we solved the moles question. Let's see the question. I believe that all of you have practiced that chapter, so it will be easy for you to learn. How much ephedrine HCl would be required to provide 300 mg of ephedrine? This is a standard question of moles. Then we are given the formula for ephedrine and ephedrine HCl. This ephedrine should be down here, stating ephedrine HCl in the second line. This ephedrine should be down here, ephedrine HCl. So the formula of ephedrine is here, formula of ephedrine HCl is here, their molecular weights are here. This is a standard formula of this is the standard question for solving as moles question. So what we will do, we will write the equation. Sorry, I mistakenly made an error and I have corrected it. So this is ephedrine HCl on one side, this is ephedrine on other side. We are given the weight of ephedrine. So we'll start solving. We know this is 1 on 1. We start solving, we find out number of moles, and then we do the conversion 1 on 1, and then same, we found out the mass. And here is our final answer. This question is the first in this chapter of Monash University lectures. ये वही है जो आप मोल्स के अंदर करते हैं. इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है या सबको ये क्लियर है ये बात, क्योंकि हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था. क्लियर है सर, सर. ये क्लियर है, मगर आपने दो तरीकों से सॉल्व करा है, तो मुझे नीचे वाला ज्यादा इजी लग रहा है. अभी मैं वहां पे नहीं गया ना. ये वाला तरीका जो अभी तक मैंने बताया, ये आपको क्लियर है ना कि इस तरीके से हम Yes, sir. मोल्स को सॉल्व करते हैं. अच्छा, इसको Yes. अब इसको करने का ना एक और तरीका मैं इसमें एंटर कर देता हूँ. लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस सेम क्वेश्चन. क्या होता है, व्हेन वी वर इन मोल्स, थिंग्स वर कॉम्प्लेक्स. There were complex questions also, which cannot be solved by this second way I am going to tell you. But when you are given very simple question in which you have given molecular weights of both substances, so we need molecular weights and grammage, or we can say mass. It can be in gram or in mg. We know in a cross multiplication, when we are given three values, we can find fourth as x. So in the same way, if the question is simple, you can use this cross multiplication and you will get the same answer. But there is one technicality. Let's say we have this molecular weight here, this molecular weight, and this mass here, and we have translated the values from the question into this cross multiplication. Now, as long as this 1 on 1 thing is here, this is going to be the answer directly. This is going to be the answer directly, but what if this is 2:1, 2 to 1? Then moving from this way to this way, we will need to divide this by 2. This is common sense, right? We have also learned two ways that in this step, we can simply divide it by 2. If this value is 2 and this is 1, is this concept clear? Yes, sir. But you want to say that जितने भी मतलब मोलर और मिली इक्विवेलेंट और मिली ऑस्मोलर के क्वेश्चंस होंगे वो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, बस नहीं? ये अगर तो सिंपल हो ना क्वेश्चन कि जिसमें आपको दो मॉलिक्यूलर वेट दिए हैं, यानी कि 3 वैल्यूज दी हैं, मॉलिक्यूलर वेट और मास का क्वेश्चन है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट या मास का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट और तरह के भी हैं उसके अंदर.
अगर तो सिंपल ये सॉल्विंग करनी है कि आपको एक मैस फाइंड करना है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट एक दिया है, दूसरे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, एक का मैस दिया है, इसको आपने फाइंड करना है। तो आप एक्स के जरिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए फाइंड कर सकते हैं, अगर सिंपल इतना ही सिंपल क्वेश्चन है तो। और दूसरी चीज ये कि आपको इसका ख्याल करना है कि ये 1 on 1 ही है, ये नंबर ऑफ सर मोल्स अगर हम वन ऑन इसका वन ही ख्याल है। रखेंगे तो बात तो वही हो गई ना कि हम मोल्स को नजर में रख रहे हैं। बात वही है, तो मोल्स को ही नजर में रख रहे हैं हम लोग। तो अगर मोल्स भी दिए हुए हो तो भी ये हो सकता है पॉसिबल कि अगर ग्राम्स भी दिया हुआ हो, साथ में मोल भी दिया हुआ हो, और 2 मोल्स, 1 मोल इज फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम लोग फिर उसको 2 से डिवाइड कर हाँ देंगे, हाँ, बात तो वही हो जाएगी। हाँ जी वही वाली बात है। अच्छा अब ये क्या है, ये जो स्टेप है ना, ये एडिशनल है। दिस इज फॉर टाइम सेविंग। व्हेन यू फर्स्ट गेट द आइडिया, when you first get the idea of this type of solution, then you can go and try this within your practice, so that आपको ना ये डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, यानी कि प्रो भी है सॉल्व करने का, तो आपको डायरेक्ट इसके अंदर नहीं जाना है, आपको इसकी इस तरीके की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर आप इसको अब इंक्लूड करना शुरू कर दें और इसकी प्रैक्टिस करें, देखें कहाँ ये काम करता है, कहाँ ये काम नहीं करता। ठीक, और जब आपको लगे प्रॉपर तो आप इसका इस्तेमाल अपने एग्जाम में कर सकते हैं। दिस इज अ टाइम सेविंग वे, लेकिन इसको ज़्यादा कॉशियसली यूज़ करना पड़ेगा आपको। जैसे रिपीट से, जैसे पीटीई के अंदर हम करते हैं रीड अलाउड, पहला क्वेश्चन हमारा पीटीई जब आप करेंगे तो रीड अलाउड होगा, उसमें एक होती है 1 लाइन स्ट्रेटेजी, कि आप एक लाइन बोल दें, पूरा पैराग्राफ नहीं बोलें। लेकिन वो जो 1 लाइन बोलनी होती है ना, उसको बोलना इतने प्रोफेशनल वे में होता है कि वो सबसे होता नहीं, उसमें गलती कर सकते हैं हम लोग। तो सिमिलरली ये एक शॉर्टकट तो है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। आप क्वेश्चन के अंदर कहीं पे आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं दी, आपको घुमाया तो नहीं हुआ इन्होंने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये एडिशनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा अब ये क्या है, ये वाली चीज आगे जाके एक जगह पे इस्तेमाल होने वाली है हमारी, हम देखेंगे आगे जाके। तो ये कॉन्सेप्ट तो सभी को क्लियर है ना, जो ऊपर वाला है। यस सर। यस सर। चले अब ये, अब आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इसको ले आना है। जो बंदा समझता है ना कि ये इसके साथ कर सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिस में ले आए, परफेक्ट हो जाए इसके ऊपर और इस्तेमाल शुरू कर दें इसका। जब मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई थी ना पहले दिन, उस वक्त मैंने डिस्क्राइब भी किया था उस वक्त कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ये हम सिंपल कन्वर्जेंस या फिर मोल्स के फार्मूला में भी लगा सकेंगे, अगर किसी को याद हो तो मुझे आइडिया था कि ये इसको यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो आई थॉट दिस वाज द राइट टाइम कि मैं आपको इसके बारे में भी बताऊं, ताकि आप एक्चुअल वे की प्रैक्टिस कर चुके उसके बाद आप इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लें अगर हो सके तो। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करने को आएगा कि हाउ मच क्लोरहेक्सिडिन बेस इज कंटेन्ड इन 35 ग्राम्स ऑफ क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। ये एल ही है, ये आई गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा अब ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को पढ़ के कि इसके अंदर टेक्निकलिटी है क्या, व्हाट इज द टेक्निकलिटी इन दिस क्वेश्चन? ट्राई करें। इसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बताया, दूसरा नहीं। सर ग्लूकोनिक कंफ्यूज एसिड। करने के लिए ग्लूकोनिक एसिड दिया हुआ है। इसके अंदर ये जो नहीं पूछा है ना, ना इसने, हाउ ग्लूकोनिक मच, एसिड नहीं दिया हुआ। हाउ मच, कितना? ये जो ये जो हाउ मच दिया हुआ ना, इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ। इसका मॉलिक्यूलर वेट किधर है? क्योंकि हमने तो जो अपना सॉल्व करना है उसके अंदर तो जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या इन्होंने टेक्निकलिटी किया है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया, लेकिन क्या हुआ है, इन्होंने हमें क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट और ये ग्लूकोनिक एसिड का दे दिया, इस ग्लूकोनिक एसिड का दे दिया हमें, और इसका दे दिया, नहीं नहीं क्लोरहेक्सिडिन का नहीं दिया, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट पूरे फार्मूला का दिया और इस पार्ट का दिया, इसका नहीं दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, learn it that maybe sometimes they give us the molecular weight of the full formula and one part of the formula, and we need to find the molecular weight for some part of this formula, that is this chlorhexidine. So how we will do it, this is very simple, learn it.
what is the total molecular weight? We can do simple addition and subtraction to find the molecular weight of this missing part. Let's say what is the total molecular weight? This is 897.8. Wait a second, let me just let's take a look at this formula first. Here is this 2. This 2 means there are two. First of all, let's check what is this gluconic acid C6H12O7. C6H12O7, this is gluconic acid. Now we know that there are two molecules of gluconic acid. ये बात क्लियर होगी सबको? यहाँ पे जो 2 लिखा होता है उसका मतलब होता है कि ये 2 हैं. ये चीज का पता है ना सबको? Yes. चले, अभी हमें पता लगा 2 molecule gluconic acids are here in this molecular weight, and gluconic acid molecular weight is 196.19. So we need to multiply this by 2. 196 by 19 multiply by 2 because there are 2 molecules. This is the molecular weight of gluconic acid in this formula. Now, from the total molecular weight of this chlorhexidine gluconate, subtract this weight for gluconic acid 2 molecules, this one. So we will get the molecular weight of chlorhexidine. ये चीज समझ आ गई सबको? अगर ये कोई मिस किया हुआ है किसी एक पार्ट का इन्होंने molecular weight, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यस सर, समझ आ गया. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था 2 किसी को मॉलिक्यूलर समझ वेट नहीं की आया. वजह से, हाँ, मगर किसी और को कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर? नहीं समझ किस किस को आई है? फिर वो हैंड रेस करके मुझे बता दें. सर मुझे आ रही शाबाश, हैंड रेस करें तो मुझे पता लगेगा कि अच्छा भी समझ भी आई है कि नहीं आई. जी जी आ रही। मिस रिदा ज़ाहरा, आपको नहीं समझ आई? शॉर्टली मैं बता देता हूँ वंस अगेन. बाजुकात ऐसा होता है कि जो हमें रिक्वायर्ड होती है ना चीज़, या कोई भी चीज़, हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट रिक्वायर्ड है. कोई एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ द फार्मूला जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें रिक्वायर्ड है टू सॉल्व इट एज वी डू यूजुअली, वो हमें दिया ही नहीं हुआ. इंस्टेड उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें किसी दूसरी चीज़ का कर सकते हैं जो कि मिसिंग पार्ट है. दूसरे का माइनस कर दें बीच में से. ये जो दूसरा पार्ट दिया है हमें इन्होंने, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ ना, ये टोटल में से इसको माइनस कर दें तो हमें हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है. अच्छा, अब इससे आगे सारा कुछ वही है. हमने इक्वेशन लिखी, हमने देखा कि ये कितना कितना है, ये 1 है, this is giving us 1 mole of this and 2 moles of gluconic acid, just like in the formula. This 2 is related to this 2. Then हमें किसका वेट दिया हुआ है, मैस किसका दिया है? हमें मैस दिया हुआ इन्होंने क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट का, 35 ग्राम्स ऑफ क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट. तो यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक वैसे जैसे हम करते हैं. फर्स्ट कन्वर्ट इट टू मोल्स, देन कंपेयर इट 1 on 1 एंड देन फाइंड द आंसर. ठीक है जी, यहाँ से आगे चल रहे हैं हम. अब ये चीज़ वही थी जो हम मोल्स के अंदर सीख के आए हैं. अच्छा, ये प्रॉब्लम भी अब आपको पता लगी कि मे बी हमें जो पार्ट चाहिए है उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हो, हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि शायद ये क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व होगा. आपने अपने तरीके से स्टिक करना है. वो क्वेश्चन को देखें, आपको आइडिया होगा. चलिए, अब तो पता भी लग गया ना कि ये काइंड ऑफ क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एक पार्ट का मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले. नेक्स्ट चलते हैं. How many grams of potassium bicarbonate and how many ml of 36% acetic acid are required to prepare 150 gram of potassium acetate? Let me simplify this for you. What they're saying is that we have now two different formulas, two different molecules, CH3COOH and KHCO3, and this is forming a third formula. What was happening in the moles chapter? कि हमारे पास एक फार्मूला होता था CH3COOH, और यहाँ पे हमारे पास CH3 की हम ओनली कैलकुलेशन कर रहे होते थे. फॉर एग्जांपल, हम सिर्फ सोडियम की कैलकुलेशन कर रहे होते थे. एक हमारे पास पहले फार्मूला होता था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ हम देखते थे अच्छा सोडियम या लिथियम या क्लोरीन कितनी है, हम उसको सॉल्व करते थे. ये चीज याद है सबको?
कि पहले क्या होता था, हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे होते थे, जैसा कि ये एफिड्रिन के अंदर देखें, एफिड्रिन HCl के अंदर से हमने एफिड्रिन पे फोकस किया था ओनली। अब इसके थोड़ा सा वन स्टेप आगे ले जाते हैं, हम देखते हैं कि अगर टू डिफरेंट फार्मूलाज आर हैविंग अ रिएक्शन एंड अ थर्ड फार्मूला इज जनरेटिंग, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसकी भी अमाउंट बताएं हमें आप, इसके ml बताएं। Tell us this in mLs and this in grams. And this value is given 150 grams. Let's see how we solve it. Simply, we solve it like we do normal mole questions. We start from here where the mass is given. Calculate the moles. 150 divided by molecular weight is 98. Potassium acetate is equal to 1.53 moles. Now we have to come back here and calculate the mass of these two, just like we do in moles. Now we will take this as 1 1 1. There is no 2 written anywhere. No 2, no 2. दो तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये सारे एक एक ही हैं, तो ये 1 1 1 ही है। अब ये 1 on 1 है, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं मोल्स के जो हम बनाते हैं एक डीप डाइव, या आप सिंपली अब मेच्योर हो गए अब इस तरीके पे आ जाए। चले पहले हम इसका मैथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 1 on 1, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे 1 और 1 नहीं लिखा। अच्छा, सबसे पहले इसका कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये ग्राम्स में है, इट विल बी इजी टू कैलकुलेट। सिंपली इसके अंदर लगाएं 1.53, इसका कितना है ये लिखा हुआ है इसका मॉलिक्यूलर वेट, दिस विल बी इट्स आंसर सिंपली। इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, और ये क्या चीजें हैं, ये इन्होंने जो यहाँ पे चेंजेस किए ना, कि इसको एक तो वेट बाय वेट के अंदर दिया हुआ है, दूसरा इन्होंने ml मांगे हुए हैं इसके, एक तो वेट बाय वेट के अंदर दिया हुआ है और दूसरा इसके ml मांगे हुए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज कमिंग फ्रॉम चैप्टर 1 2 and 3। If you have clear concepts of these conversions, it will not be a problem, but let's see. This is not that complex as it is looking in the question. First of all, we'll see how much total of this substance we will get in grams. Simply, as we have calculated for the other formula, the answer will be 91.8 grams. Now, all of these things we will calculate. From 36% weight by weight, we'll see 36 gram in 100 gram. Then 91.8 gram will be in how much of solution? This 98.1, the 91.8 gram. This will be the answer. This is the total volume of 36% acetic acid we need. Now for the next part, they are asking for mLs. So we need to convert it using the formula of density is equal to mass by volume. Volume is equal to manipulation. After manipulation, this is volume is equal to mass by density, and the answer is going to be this much ml. We simply have converted this gram to ml because the density is also given here. So the technical part was related to the chapter 1 2 and 3, and other things were same. What is additional here is that now we have calculated the grammage and ml. We'll say mass. Generally we'll say mass out of this, just like we do with any other molar question. ये चीज क्लियर है कि अगर दो का भी फाइंड करना आ जाए तो डरना नहीं है, वो भी सेम उसी तरीके से होगा जैसे हम सिंगल का फाइंड आउट करते हैं। ये क्लियर है सबको? नंबर ऑफ मोड्स पर डिपेंड करता है ना, अगर नंबर ऑफ मोड्स सेम है तो फिर आंसर भी इक्वल ही होता है। अगर वो आगे पीछे होगा, जैसे 2 होगा किसी का, तो वहाँ पे फिर हमें जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात सभी को क्लियर है कि इसका सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरह जैसे हम नॉर्मल मोल्स का क्वेश्चन करते हैं। यस सर। तो अगर ये दो भी आ गए ना आपको, ये दो भी इंग्रेडिएंट, दो सब्सटेंस का भी कैलकुलेट करना आ गया, तो वैसे ही होगा जैसे हम सिंगल का करते हैं। मे बी कंफ्यूजिंग, खुसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने वो मोल्स वाला अगर प्रैक्टिस नहीं ना किया सही तरीके से, तो ये उसकी इवॉल्व्ड फॉर्म्स हैं। हमने कोई भी एक नई चीज नहीं सीखी अभी तक, हम सिर्फ उसकी इवॉल्व्ड फॉर्म्स सीख रहे हैं। अब मुझे ये हाथ खड़ा करके लोग ये बताएं कि समझ आई किस किस को है। हाफ लोगों को समझ आई। चलें, अब आप ऐसा करेंगे, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे मोल्स वाला सही से प्रैक्टिस करने के बाद, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये एक पूरी इक्वेशन दी हुई है,
ये इस तरह से पूरा फार्मूला लिखा हुआ है। एक्चुअली इस फार्मूला के अंदर क्या है कि इनकी ग्रामेज लिखी हुई है, जिस चीज की आपको ग्रामेज चाहिए आप यहाँ से पिक कर लें, कोई डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर से। और क्वेश्चन सिंपल वही है जो हमारे पास एक मोलर कैलकुलेशन का हुआ करता। How many grams of potassium carbonate should be used to saponify 20% of stearic acid? Assume stearic acid to be 100% pure. Let me simplify this for you. इसके अंदर हुआ क्या है, अब हम this time we will be playing only on this side of the equation. We will not go on this side. We will ignore it because they are talking about, let's see, how many grams of potassium carbonate K2CO3 half H2O. K2CO3 half H2O. This part they are talking about. How many grams they are talking about and should be used to saponify. What is saponification? Saponification is a kind of reaction. You will read it in your chemistry notes. 25% of stearic acid. Forget about this 25%. We will see how easy it is. This is just a type of reaction. 25% of stearic acid. What is stearic acid? C17H35COOH. This they are talking about. Now they are talking about these two formulas on same side of the equation. Used to saponify 25% of stearic acid. Assume stearic acid to be 100% pure. This is line that we are not concerned of with respect to this question. Now this is given the molecular weight of end results. This we are not concerned about this. We are only concerned about these two things. This is asked and this is given. 200 gram is given here. Let's see. This is 200 grams. तो ये जो लिस्ट अगर दिया ना तो इसलिए दिया कि आप अपनी ग्रामेज उसके अंदर से देख लें। यहाँ पे भी ये लिख सकते थे, यहाँ पे शुड बी यूज टू स्पोनिफाई स्टेरिक एसिड के साथ यहाँ पे कहीं पे ये 200 ग्राम लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने आपको अलग से दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब हम इक्वेशन के सिर्फ एक साइड के ऊपर ही काम करेंगे। we will be working on the same side of the equation, but we will do as we do with any other equation. See how on this side of the equation we see this equation will be given in the exam. Here is a 2, ये 2 देख रहे हैं आप, ये 2 का मतलब है कि ये 2 हैं और ये 1 है। तो ये जो मैंने लिखा है, मैंने इसको यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। सिंपल, बाकी कैलकुलेशन आगे से वही है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि किस टाइप के मोल्स क्वेश्चन में घुमाव फिराव दे सकते हैं वो हमें। अब यहाँ से कैलकुलेट स्टार्ट करें, मोल्स कैलकुलेट करें जैसे हम करते हैं 200 डिवाइडेड बाय, मतलब मैस बाय, ये ग्राम्स के अंदर है इसलिए हम मोल्स के अंदर रहेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। हम ग्राम्स के अंदर है तो मोल में रहेंगे, यूनिट कौन से रखने हैं हमने। ये मोल्स आ गए जी हमारे पास, ये 200 मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर हमने ये देखा 2 to 1 के अंदर जाना, हमने इसकी कैलकुलेशन की और हमने यहाँ पे आके मैस का फार्मूला लगा लिया, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये तो सिंपल था ना, ये यहाँ से यहाँ तक तो हमने बिल्कुल सिंपल किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझा है कि वो सिर्फ एक पार्ट की तरफ ही काम कर रहे हैं इक्वेशन का, लाजमी नहीं है कि इक्वेशन के दूसरी तरफ ही आए। अब आपको ये भी पता लग गया कि ये भी एक ट्रिक हो सकता है कि इक्वेशन के सेम साइड के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। अब ये जो 25% वाली बात रह जाती है, ये देख लेते हैं कि 25% क्या ये कह रहे थे हमें। ये तो 100% ऑफ द रिएक्शन में हमने निकाल लिया ना, तो हम 25% को या लिखें इसका आंसर कि इतने ग्राम में चाहिए 58.1, तो 58.1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 25% लिखें कैलकुलेटर के ऊपर, यू विल गेट द आंसर फॉर 25%। ये एक छोटा सा स्टेप है जो एंड के अंदर ऐड किया इन्होंने। बाकी ये इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक नॉर्मल मोल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब मुझे कोई एक बंदा ये बताए कि इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या था। सही, सर 25% 25% वाली बात में आता है। नया बात थी। और सर ये जो 2 लगाया है इक्वेशन में, इसमें स्टेरिक एसिड में, ये खुद से लगाया है, मतलब याद करना पड़ेगा मुझको। नहीं नहीं, याद ही कर पड़ेगा। ये जो इक्वेशन दी होगी ना आपको, ये आपको ये पता ये है कि ये इक्वेशन जो गिवन दो, तो होगी। ये इक्वेशन के एक तरफ भी हम रहे हैं, ये भी मतलब कि पहले नहीं था शायद। हाँ ये पहले नहीं था, ये पॉइंट है कि ये चीज हमने नहीं देखी है कि इक्वेशन के एक तरफ रह के भी बाजू का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। ये 2 वाला आंसर मैं कर देता हूँ। ये अगर किसी चीज के, ये मोल्स वाला आपने देखा हुआ है लेक्चर मेरा, ये जो 2 वाला जी क्वेश्चन कर रही थी आप, जी जी। तो आपको जी ये जी पता है ना कि जी। अगर किसी फार्मूले से पहले 2 लगा हो तो उसका मतलब होता है वो 2 है।
इसके पहले देखें तो ये कुछ तो भी नहीं पता लगा है, मैं हुआ। बोली इक्वेशन हमें गिवन होगी या खुद बनानी पड़ेगी? इक्वेशन आपको गिवन होगी, इक्वेशन हाँ आपको फिर गिवन सही होगी। है, तो मतलब हम्म, नहीं नहीं, फिर कोई इशू ठीक नहीं। है ये। अच्छा, अब ये वेरी सिंपली उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं हम लोग जिस तरह मोल्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे। 25% वाली बात बता देते। नई चीज इस क्वेश्चन में क्या थी, जैसे वकास ने बताया कि हमें इक्वेशन के एक तरफ ही सॉल्व करना पड़ गया क्वेश्चन, हम दूसरी तरफ गए ही नहीं। हमें तो इसी का पूछा था। जब आप ये लिख लेंगे ना इस तरीके से ये वाली चीज, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसको लिख लिया करें, कोई भी इक्वेशन बनाया करें तो आपको आगे जाने नहीं पड़ा। ये देखिए मैंने डॉट 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 लिखे हैं, क्योंकि मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं। मेरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। 25% वाली बात यह है कि इन्होंने हमसे कहा है कि शुड बी यूज टू स्पोनिफाई। स्पोनिफाई को आप एक रिएक्शन का नाम दे दें बस। स्पोनिफाई इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो 25% स्पोनिफिकेशन हो, यानी 25% रिएक्शन करवाना है हमने। पहले आप 100% के लिए कैलकुलेट कर लें। जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वो 100% टोटल पूरे रिएक्शन की होती है। इसका आप 25% निकाल लें, एंड रिजल्ट जो आता है 58.1%। 58.1 मल्टीप्लाई बाय 25% आप कैलकुलेटर पे लिखें। 58.1 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि 25% के लिए इतने ग्राम हमें चाहिए होंगे। ये 25% वाली बात क्लियर होगी सबको जी? कि वो यस आपने सर। उसका सिंपली 25% निकाल लिए कि 100% होता रिएक्शन तो इतने चाहिए होते। 25% रिएक्शन करवाना है तो उसको आप 25% निकाल लें उसके। अच्छा, हम आगे चलते हैं। ये ऐसी चीजें हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें नोट ये करें कि इसके अंदर नई चीज क्या आई है, इस क्वेश्चन में नया क्या आया है। पिछले क्वेश्चन में क्या नया आया था कि हमने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करवा के एक थर्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिया था। इसके अंदर क्या आया अब वाले के अंदर, कि हम इक्वेशन के एक साइड पे भी कर सकते हैं, कोई बाकी सारा प्रोसेस सेम है। फिर अब चलते हैं आगे। 25% ऑफ स्टेरिक एसिड था, तो हमने फर्स्ट वाले का 25% क्यों किया? ये स्टेरिक एसिड यही है। नहीं नहीं, ये इसका निकाला हमने, K2CO3 का निकला ना, ये जो आंसर निकला है। हाँ, तो वही तो स्टेरिक एसिड है ना। यार ये जो ये वाला जो मेरी बात सुनो, जो मेरी जो बात फर्स्ट सुनो, मेरी वाला। बात सुनो। अच्छा। ये जो 25% ऑफ द रिएक्शन है ना, इसको ये आप इतना नहीं वो जेन के ऊपर सवार करें। इसका मतलब सिर्फ यही है, इसको यहाँ पे आप 25% कम कर ले चीज़ों को तो भी आंसर आपका यही आने वाला है। जो आपका आंसर निकलता है आप उसका 25% ले लें। मे बी ये आपके पास ये आए, या आपको वेट बाय वेट कन्वर्जन के लिए कोई आए, तो छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम जुड़ सकती है कहीं पे भी। आप यहीं पे इसको 25% पे कर लें तो फिर भी आपका आंसर वही आने वाला है। तो आप इसको एंड पे चले जाएं। जो भी आपको ये दिया ना वेट, यहीं से आप स्टार्ट करें कैलकुलेशन को सॉल्व करना। जो आपके एंड रिजल्ट आएगा उसको आप 25% ले लें। ये इजी है। वो स्टार्ट में करेंगे तो मे बी आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आए इस फार्मूले को सॉल्व करने के अंदर। ओके, थैंक अच्छा जी, अब ये छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर के अंदर। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ये फेरस सल्फेट है ना, इसके अंदर हम सिर्फ आयरन को भी चेक कर लेंगे कि आयरन कितना होता है। एक फेरस सल्फेट पूरा है और एक है एलिमेंटल आयरन, फेरस आयरन को कहते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। फेरस सल्फेट मिक्सचर AFP कंटेन 300 mg ऑफ फेरस सल्फेट पर 10 ml डोज, यानी कि 300 mg पर 10 ml इसकी डोज है। इफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टेक 10 ml 3 टाइम्स डेली, 10 ml 3 टाइम्स डेली, दिस मीन्स 30 ml डेली वो बंदा कंज्यूम कर रहा है। साथ साथ सॉल्व करते जाया करें। हाउ मच एलिमेंटल आयरन इज द पेशेंट इंजेस्टिंग डेली। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि 30 ml के अंदर mg कितने होंगे। ये तो आपको यहीं पे कैलकुलेट कर लेना बनता है ना। तो आपने कैलकुलेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें कि 30 ml 10 30 mg है ये, सॉरी 30 mg इन 10 ml है। तो कितना होगा 30 ml के अंदर। द पर्सन इज कंज्यूमिंग 30 ml डेली। ये भी वही एक प्रॉब्लम है जो चैप्टर 1 2 3 से रिलेटेड है। तो हमें पता ये लग गया इन दी एंड आके कि डेली ये जो बंदा है ना, ही इज कंज्यूमिंग 900 mg ऑफ फेरस सल्फेट मिक्सचर। ये चीज यहाँ तक क्लियर है सबको? ये तो छोटा पार्ट था क्वेश्चन का। यस सर। ठीक है कि डेली आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छा डेली कितना कंज्यूम कर रहा है भाई ये फेरस सल्फेट यू। मिक्सचर पूरा। अच्छा, अब हमने देखना है हाउ मच एलिमेंटल आयरन। एलिमेंटल आयरन कितना है इसके अंदर। तो एक हमें तो फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और एक हमें आयरन का दिया हुआ है एटॉमिक वेट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम सिंपली सिंपली तीन चीजें अब आपके पास गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है,
एटॉमिक वेट भी मॉलिक्यूलर वेट ही होता है, समझ लीजिए, ये खाली एटम का होता है इसलिए इसको एटॉमिक वेट कहते हैं। अब हमें ये गिवन है और हमें ये भी गिवन है, अब मुझे बताएं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग जाएगी? यस सर। तो हम लगा लेते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा 900 mg, इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है? फेरस सल्फेट का 278। 900 mg के साथ अगर 278 मॉलिक्यूलर वेट है तो 55.8 के साथ कितने mg होंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगानी आ गई सबको? सही है, वही है जो स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि यहाँ वो पे जो इम्प्लीमेंट हो स्टार्टिंग में, सकता है। हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो काइंड ऑफ दिस थिंग, जब आपके पास ये तीन चीजें आ जाएगी ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। आपके पास एक मैथ आ गया और दो मॉलिक्यूलर वेट आ गया, चौथा मैथ आपने ये फाइंड आउट करना था। आप इसके ऊपर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं और इसको सॉल्व कर लें। ये क्लियर हो गया जी सबको? यस सर। जी क्लियर है। चले, अब जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको छोटे छोटे जो वेरिफिकेशन वेरिएशन थी क्वेश्चन में, ये क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ इट इज रिलेटेड टू चैप्टर 1 to 3, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हुआ क्या। हाउ मच सोडियम फ्लोराइड, अटेंटिवली इसको देखें, हाउ मच सोडियम फ्लोराइड NaF। अच्छा, इन्होंने हमें NaF का भी दे दिया और अकेले फ्लोराइड का भी एटॉमिक वेट दे दिया। इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन सच दैट व्हेन 20 ml इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml with drinking water containing 0.4 ppm of F, the concentration of F will be raised to 0.8 ppm। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ना, ये बुक के अंदर किसी और तरीके से सॉल्व हुआ था मोनाश यूनिवर्सिटी लेक्चर में। ये कॉमन सेंस मल्टीप्लिक वो लगा लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हुआ था, लेकिन ये फॉर योर अलर्टनेस के इस तरह के क्वेश्चन हमने एक फार्मूला पढ़ा था डाइल्यूशन के चैप्टर में। ये याद है किसी को फार्मूला, कि जब सीरियल डाइल्यूशन बनती है ना तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था। यस सर। ठीक है, तो इसको यस अगर सर। हम जी जी। ट्रांसलेट करें ना, इसको हम ट्रांसलेट करें इस क्वेश्चन को, तो बनता ये है कि ये जो वाटर था ना इसके अंदर 0.4 ppm पहले से मौजूद थी, और ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ जाए 0.8 तक। ये पार्ट इसके अंदर ना आपको बस पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि पहले से 0.4 ppm है उसके अंदर कंसंट्रेशन फ्लोराइड की, ये जो हम बना रहे हैं ये जब डालेंगे तो 0.8 हो जानी चाहिए। तो डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस हमारे पास आया 0.4, हमें और पॉइंट ऐड करना है 4। इसके अंदर, यानी कि अच्छा 0.4 ppm को अब मुझे कोई बंदा जल्दी से बताए, इसको मुझे अगर 100 ml में लेना है तो ये कितने बनेंगे? 0.4 कितने mg बनेंगे? पार्ट्स पर मिलियन पॉइंट डबल ट्रिपल 01 वो 401। ये मैं सीधा करके लिखता हूँ यहाँ पे ppm। ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि इसको 100 ml में आपको लेके आना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, तो आप इसको ना याद कर लें कि अब ये यहाँ पे वैल्यू क्या आनी है, बजाय कि वो 3-4 दफा आप करते हुए यहाँ पे आए। ये था 0.04 mg। अगर 1 ppm था ना, अच्छा टाइम हमारे पास कम रह गया, 1 ppm था ना, तो ये बनता था 1 mg इन 1000 ml, 1000 यस ml, सर। और 0.1 mg इन 100 ml। अब ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी कि ppm से 100 में तो लेके आपने आना ये आपको। माइनस करने के बाद लिया है ना, ये डायरेक्ट 0.4 ppm को तो नहीं ले लिया है आपने? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिया है मैंने, ये 0.8 जो टोटल बननी थी और जो पहले से मौजूद है वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, ये वहां करके से आपने 0.4 लिए consider मैंने। करें, सही। अच्छा, अब ये क्या किया हमने, चलो ये इसको देख लीजिएगा जिसको नहीं पता कि ppm टू 100 ml किस तरह ऐसे लेके आए चुटकी बजाते। एक यहाँ पे जीरो ऐड करें पॉइंट के इस तरफ, और ये आपका mg पर 100 ml बन जाता है। चलें, इस चीज को अब आप देख लीजिएगा, जिसको नहीं आता वो स्टार्टिंग लेक्चर में देखें। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि हाउ मच कंसंट्रेशन इन 100 ml, यहाँ से आते हैं हम, हाउ मच दिस x is required to prepare 100 ml, ये 100 ml आ गया। solution that when 20 ml is diluted to 1000 ml, ये 20 आ गया, ये 1000 आ गया। अब ये ml है, यूनिट्स का उसी टॉपिक में आपको बताया होगा मैंने कि यूनिट्स का आपने हिसाब रखना है। अच्छा, इज इक्वल टू एंड रिजल्ट क्या आएगा? ये 0.04 mg पर 100 ml। जब हम इस फार्मूला को सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 mg इधर होने चाहिए, यानी 2 mg पर 100 ml होना चाहिए। ये जो हाउ मच है ना, ये 2 mg है। अगर आप बुक में देखेंगे ना, एक फॉर योर रेफरेंस देख भी लीजिएगा, बड़े लंबे चौड़े सिस्टम से इसको सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्या था, इसमें इन्होंने पूछा हुआ था, एक और चीज थी एटॉमिक वेट, वो जो हम पहले कर रहे थे ना, कि हमारे पास अब मैस आ गया एक, और दो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है।
एक ये मॉलिक्यूलर वेट है, एक ये मॉलिक्यूलर वेट है, क्रॉस हम्म, मल्टीप्लिकेशन लगाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितना आपको NaF चाहिए, हाउ मच सोडियम फ्लोराइड। अच्छा, ये आपको पता चल गया। अब ये वाला पार्ट जो है ना, एज्यूम दैट NaF की ये जो है प्योरिटी इतनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैप्स के हवाले से। तो ये आपको, ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप निकालना चाहें तो निकाल लें कि 98.5% प्योरिटी के साथ ये कितना बनता है। लिख लें 4.42 मल्टीप्लाई बाई 98.5%, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको कहेंगे कि 100% 100.5% प्योरिटी है, तो इसको इस तरीके से आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये करवा दो। अच्छा, अब हमारा, जी जी, अच्छा मिस, ऐसा है मिस, आपने ना अभी लिंक शेयर कर देना मीटिंग का, तकरीबन 1-2 मिनट मुझे और चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट चले। तो मेरा सिस्टम तो अभी टाइम लेगा, तो आपने ना ये जैसी मीटिंग खत्म होने वाली है, नया नया मीटिंग ओके। लिंक आपने शेयर कर देना। अच्छा सर, ये आपने जो 98.5 माइनस 100.5% जो प्योरिटी करी है, हम्म। इसको मतलब माइनस नहीं करी है, एक तरफ 98.5% से करा मल्टीप्लाई और एक तरफ 100 ये 0.5%। आप, ये मीटिंग खत्म